is the start of our recording. We had finished May June 42, uh, अपना वेरिएंट 42, आज हम 41 करेंगे और ये पेपर मैंने पहले ही निकाल के रख लिए हैं. इनकम इनइक्वालिटी मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ. According to a report by the World Bank, income inequality has declined in some low-income countries in recent years. For example, between 2008 and 2018, the Gini coefficient decreased by more than 5 percentage points in Chile, Colombia, and Mexico. In some other countries, such as Ethiopia, India, and Indonesia, income inequality has remained relatively stable over the past decade, while it has increased in China and South Africa. I think pretty self-explanatory paragraph. The only thing is मैंने आपको 0 and 1 values करवाई हैं. Zero value also means 0%, यानी 0% inequality, and 1 means 100% inequality. So इस एंगल से थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दूं. In low income countries, inequalities of opportunity, in particular the difference in access to education between females and males, appear to pose obstacles to a more equal income distribution. Equality of opportunity becomes an issue of macroeconomic relevance. अब वो कह रहे हैं जी कुछ लो इनकम कंट्रीज में इनक्वालिटीज क्यों हैं. मेल्स एंड फीमेल्स को एजुकेशन सेम नहीं मिल रही, मेल्स को ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब है. और साथ में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी एक इशू है कि भाई जॉब्स में भी इक्वालिटी नहीं मिल रही दोनों जेंडर्स को. सो टेबल 1.1 shows Gini coefficients, female male literacy ratios, and the percentages of population in absolute poverty for 5 countries. अब इसको हम वापस आके देखेंगे. सिर्फ ये देख लो कि लिटरेसी रेशियो इन्होंने कैसे कैलकुलेट की हुई है. फीमेल लिटरेसी रेट डिवाइडेड बाय मेल लिटरेसी रेट. ठीक है. जितना ये हाई होगा उतना लिटरेसी रेशियो ज़्यादा होगी. It's important to note that income inequality is a complex issue that can be influenced by a wide range of factors. ठीक है, including economic growth, government policies, and global economic trends. The government can use fiscal and supply side policies to influence and change income distribution. These could lead to higher GDP and increased economic growth. किसी को समझ ना आई हो तो दोबारा बता दूं, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. और थैंक यू. इन्होंने कुछ एक पीडीएफ मुझे भेजा है कैम स्कैन अब्दुलरहमान ने. आई शेयर इट विद यू गाइस. लेबर मार्केट के कोई क्वेश्चंस हैं. While the Gini coefficient is the most widely used measure of inequality, income inequality, it is important to note that it has limitations. It does not take into account other factors that contribute to inequality, such as wealth inequality. जैसे हमारे जैसे मुल्कों में इनहेरिटेंस कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा थी सिंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कि वो अभी तक अमीर फैमिलीज हैं, और कुछ की इतनी कम थी कि वो अभी तक गरीब हैं. तो जीनी कोएफिशिएंट इस चीज़ को नोट नहीं करता. इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अदर फैक्टर्स सच एज वेल्थ इनइक्वालिटी, एंड इट मे नॉट take into account the full extent of inequality in societies with large informal economies. अब पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज या इससे भी ज़्यादा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जहाँ ड्रग ट्रेड और इस तरह की इनफॉर्मल इकोनॉमीज बहुत बड़ी हैं, तो उसमें हमारे पास पूरा व्यू ही नहीं होता इनइक्वालिटी का, क्योंकि अनडिक्लेयर्ड इनकम्स होती हैं. समझ आ गया मेरा बेटा? किसी को कंफर्म कोई कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. All right, Ji, let's now see how well you guys are equipped to answer it. Let me see how many. Chalo, nice. आज तो कुछ बच्चे आ गए. Let's go, Ji. Describe what is meant by Gini coefficient and its possible range of values. तसल्ली से मेरे बच्चों 3 मार्क्स लेने हैं हमने. जी, पहले एक्सप्लेन करें. Very good. Gini coefficient is a measure of income and less commonly wealth inequalities. एक मार्क. अब जैसे ही अब्दुलरहमान ने बोला वैल्यूज आर बिटवीन 0 to 1, दूसरा मार्क. जीरो का मतलब क्या है?
जीरो मीन्स yes perfect inequality, and वन या 100% मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी. जितना जीरो के पास उतनी इनइक्वालिटी कम. किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ इट, एंड लेट मी चेक माय रिकॉर्डिंग एज वेल, क्योंकि मुझे पिछले एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे. ठीक है जी. सो Gini coefficient is a numerical measure of income and wealth inequality in a population, in a country, in a region. इस तरह करके कुछ बोल दें. Its range of values are between 0 and 1. 0 means perfect equality, 1 means perfect inequality. सबको क्लियर है जी? 3 marks. Distinguish between absolute poverty and relative poverty. जी, ये मैंने नोट्स में थोड़ा सा लिखा हुआ है. अब आई होप यू गाइस कैन फिगर इट आउट. व्हाट यू थिंक इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? जी बिल्कुल. ठीक है ठीक है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज व्हेन पीपल कैन नॉट अफोर्ड इवन द बेसिक नेसेसिटीज. आईएमएफ के मुताबिक लेस देन $2 पर डे अगर आप अर्न कर रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली पुअर. ठीक है. रिलेटिव पॉवर्टी नाम से क्या लग रहा है जी? कंपैरिजन होता है. बोलें थोड़ा सा. Yes. So relative poverty is when it's compared with similar groups in the society. Sometimes national average income के मुकाबले में करते हैं. Absolute poverty is when you cannot afford even the basic necessities, earning less than $2 per day. In other words, you're below poverty line as referred to by UN and World Bank. And relative poverty is when you're poorer compared to other groups in the society, similar groups, मतलब rich and poor का gap, primary, secondary, tertiary का gap, ये चीजें. अब जरा इन दोनों को मार्क स्कीम से टैली करते हैं. द जीनी कोएफिशिएंट measures income inequality, or less commonly wealth distributing among a population. The coefficient ranges from 0 to 1, with 0 representing perfect equality and 1 representing perfect inequality. Absolute poverty is used to describe a condition where an individual does not have the financial means to obtain commodities to sustain life. आप ये लिख लें, when somebody cannot afford basic necessities. It is sometimes expressed as being below the poverty line, which gives a level of income per day. आप लिख सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, लेस देन $2 per day. Relative poverty refers to level of income compared to income levels of other groups within the same country, same surroundings, same society. समझ आ गया मेरे बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब ये बेसिक रिवीजन अच्छी थी तो ये 6 मार्क्स में से 4 तो आप ले सकते हैं बड़े आराम से. यू शुड गेट ऑल 6 इंशाल्लाह. अब ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं. कंसिडर वेदर टेबल 1.1 supports the conclusion that greater inequality of incomes is linked to poor literacy ratios of females to males and leads to greater poverty. तसल्ली से देखें, दोबारा पढ़ते हैं. वो कहते हैं टेबल 1.1 पे जाएं, और क्या वो जो आर्टिकल में कंक्लूजन लिखा हुआ था कि ग्रेटर इनइक्वालिटी क्यों होती है इनकम की कुछ कंट्रीज में? पुअर लिटरेसी रेशियोज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स के बीच में, जिसकी वजह से ज्यादा पॉवर्टी आती है. एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन? गुड. लेट्स नाउ सी. 3 कॉलम्स हैं. जीनी कोएफिशिएंट जो बता रहा है इनकम इनइक्वालिटी, जितना जीरो के पास उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, लेस इनइक्वालिटी, और जितना 1 के पास जैसे ब्राजील है वहां पे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी. लिटरेसी रेशियो, फीमेल लिटरेसी डिवाइडेड बाय मेल लिटरेसी, जितनी ज्यादा वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं फीमेल्स को पढ़ने की, और जितनी कम उतनी कम अपॉर्चुनिटीज हैं फीमेल्स को पढ़ने की.
परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये हमें रिजल्ट बता रही है, ठीक है, कि भाई पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग हैं, गुर्बत कितनी है। तो अब तसल्ली से टेक योर टाइम और जरा बताएं कि जी क्या ये कंक्लूजन सपोर्ट हो रहा है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज लिंक्ड टू पुअर लिटरेसी रेशियो, नंबर वन, और उसके रिजल्ट में क्या ग्रेटर पॉवर्टी आ रही है, ठीक है। तो हम हाईएस्ट एंड लोएस्ट देखते हैं। ब्राजील में लिटरेसी रेशियो हाईएस्ट है फीमेल की। मुझे बताएं क्या इधर इनइक्वालिटी कम है? नहीं है, नहीं है, काफी हाई जीनी कोएफिशिएंट है। और जीनी कोएफिशिएंट हाई है लेकिन पॉवर्टी लाइन से लोग कम नीचे हैं परसेंटेज वाइज। सो दोनों चीजें यहां पे प्रूव नहीं हो रही। सब देखते जाएं डेटा। हमने डेटा को ही यूज करना है और अपनी कॉमन सेंस यहां यूज करनी है, नोइंग दैट जीनी कोएफिशिएंट जितना जीरो के पास है, जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे सबसे कम इनइक्वालिटी है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, अनडिक्लेयर्ड टैक्सेस एंड ऑल। 0.3 जीनी कोएफिशिएंट है लेकिन फीमेल लिटरेसी सबसे कम है। तो यहां पे इनइक्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, फीमेल लिटरेसी कम है, तो कोई लिंक नहीं बन रहा। और इनकम इनइक्वालिटी कम होने के बावजूद परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा है। सो कुछ जनरल कमेंट्स करें, मैंने आपको सिखा दिया है करना, अब आप लोग मुझे बताएं। हम्म, yes, countries with low Gini coefficient are showing high levels of population below poverty line. Countries with high literacy showing are high inequality through Gini coefficient. तो कोई कंफर्म कोरिलेशन नजर नहीं आ रही, तो चैलेंज दे डेटा जी मेरे बेटा। देखो, 2 मार्क्स आपको वो उसके दे देगा, 2 मार्क्स ट्रेंड के हैं, 2 मार्क्स कंक्लूजन के हैं। Unfortunately, there is no clear guideline on 5 markers, 6 markers, 4 markers based on tables. आपने अपनी बेस्ट यूज करनी है। मैं इसमें बच्चों को क्या कहता हूँ, पिक अप द हाईएस्ट वाला पहले। जैसे ब्राजील, जीनी कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा है, इधर इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यस, लेकिन इधर तो फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा है, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, राइट। पाकिस्तान सबसे कम जीनी कोएफिशिएंट है, इनकम इनइक्वालिटी सबसे कम है, लेकिन फीमेल लिटरेसी सबसे कम है, तो ये लिंक नहीं बन रहा। साथ में पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन भी काफी ज्यादा है, लिंक नहीं बन रहा। सो इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे लो इनइक्वालिटी वाले कंट्रीज में पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन काफी ज्यादा है, फीमेल लिटरेसी कम है, जबकि हाई जीनी कोएफिशिएंट वालों में लिटरेसी ज्यादा है फीमेल की। तो किसी सूरत में भी कंक्लूजन नहीं पढ़ सकता, दोनों चीजें इनएक्यूरेटली कंक्लूड की गई हैं इन द आर्टिकल। जरा ऊंचा बोले। वो रिजल्ट है, देखो ना उसने क्या कहा है यहां पे। इनफॉर्मल सेक्टर हो सकता है, खैर पॉवर्टी लाइन भी इनफॉर्मल सेक्टर नहीं पिक करता ना, हम तो अपने नॉन फॉर्मल सेक्टर को ही बस डिस्कस कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। फॉलो कर रहे हो? देखो, आप जरा स्टेप बाय स्टेप चलो, वापस क्वेश्चन पे जाओ। दो लिंक्स उसने पूछे, क्या टेबल 1.1 सपोर्ट करता है इस कंक्लूजन को कि ग्रेटर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स इज लिंक्ड टू पुअर लिटरेसी रेशियोज? पहले इसको करते हैं 3 मार्क्स के लिए विद द कंक्लूजन। क्या जिन कंट्रीज में ग्रेटर इनकम इनइक्वालिटी है वहां फीमेल लिटरेसी रेशियो कम है? बताएं मुझे। ब्राजील, मॉरिशस दोनों में फीमेल लिटरेसी ज्यादा है,
जीनी कोएफिशिएंट भी ज्यादा है, तो कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं बन सकता। पाकिस्तान और इजिप्ट, जहां फीमेल लिटरेसी कम है वहां जीनी कोएफिशिएंट कम है, इनकम इनक्वालिटीज कम है। कुछ फॉलो कर रहे हो? और उसका रिजल्ट उसने पूछा है कि इट विल रिजल्ट इन, दूसरी बात, कि पुअर लिटरेसी रेशियोज ऑफ फीमेल एंड मेल्स रिजल्ट टू ग्रेटर पॉवर्टी। अब जिन कंट्रीज में, सिवाय ब्राजील के, जहां फीमेल लिटरेसी रेशियो जो है वो हाई है, वहां परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यहां पे थोड़ा सा लिंक बन रहा है, नहीं इंडिया में गड़बड़ हो रही है ना, जहां पे हाई लिटरेसी है फीमेल्स की, वहां पे भी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन काफी है। ठीक है। और जहां इजिप्ट और पाकिस्तान में, जहां लिटरेसी रेशियो फीमेल्स की कम है, वहां पे पॉवर्टी लाइन से लोग ज्यादा हैं, तो यहां थोड़ा सा लिंक। जी बेटे जरा माइक बंद करो। हेलो जी। अमल, whoever was asking, ये बात समझ आ गई अब? अच्छा, जिसने भी पूछा था मुझे आपकी आवाज ही लग रही थी, किस बच्चे ने पूछा था? ओके ओके राइमीन, ठीक है, यू गाइस हैव सिमिलर वॉइसेस, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मच। अच्छा, नो अपेरेंट लिंक टू पुअर लिटरेसी रेशियोज, better literacy ratios are in countries with greater inequality of income distribution, cannot determine a cause effect. Conclusion हो गया। Higher Gini coefficients are also in countries with lower percentage below poverty line, no link to absolute poverty, cannot tell about relative poverty. जी, क्या कह रहे थे अब्दुल रहमान, या जो भी बच्चा था? इसका मेरा आपको मशवरा क्या है, प्ले विद द डेटा, इससे थोड़ी सी फाइट करें, हाई एंड लो फिगर्स पकड़ें, फिर कंक्लूड करने की कोशिश करें। इसमें टॉप बच्चे भी 4 मार्क्स ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मैंने नजर मारी थी, बहुत ही आसान है। यूज वन एग्जाम्पल ऑफ अ सप्लाई साइड पॉलिसी एंड वन एग्जाम्पल ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी टू असेस, assess means उसकी limitations भी, how a government might be able to achieve greater equality in distribution of income। मुझे सप्लाई साइड पॉलिसीज डिफाइन भी कर देते हैं एहतियातन, और मुझे एक सप्लाई साइड पॉलिसी को खुल के कोई बच्चा एक्सप्लेन करे कैसे वो इनकम गैप को कम करेगा, बट व्हाट आर द लिमिटेशंस। क्वेश्चन आपके सामने है। एक सप्लाई साइड पॉलिसी पकड़ें और बताएं कैसे वो इनकम इक्वालिटी लाएगा, और क्यों कामयाब नहीं होगा, लिमिटेशंस बताएं। या परफेक्ट राहिमीन, परफेक्ट, गुड चॉइस। उससे क्या होगा? स्किल लेवल, प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो आप थोड़ा सा कहें, मोर एजुकेशन प्रोवाइडेड फेयरली बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अब उससे क्या होगा? दे विल बी मोर एम्प्लॉयबल, दे विल अर्न हायर इनकम्स, मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे अपने लिए, इनकम गैप्स कम हो सकते हैं। सॉरी, मोबिलिटी की बात करें ना, ऑक्यूपेशनल भी हो जाएगी, जियोग्राफिकल भी, तो वो जो जरा थोड़े से डाउन ट्रॉडन रीजन्स थे वहां पे भी इनकम्स आ जाएंगी, राइट। अब इसके बाद मेरा बेटा, व्हाई वुड दिस पॉलिसी हैव सम लिमिटेशंस, क्या इसमें मसला है? टाइम लैग, वेरी गुड। ब्रेन ड्रेन, पढ़ा लिखा वर्कर बाहर चला गया, और बताएं जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉन्ग रन इफेक्ट, परफेक्ट। हाँ जी। मसलन कौन सी? वेलफेयर बेनिफिट्स को कम करना, यस, ठीक है, ठीक है। क्वालिटी अच्छी ना हो, हाँ ठीक है, ठीक है। सब्सिडीज के बावजूद अफोर्डेबिलिटी इज अ फैक्टर, बिल्कुल ठीक है।
Any reasonable answers? He says any reasonable answers. Very good. Fiscal policy जी, क्या करेंगे टैक्सेशन का, मुझे बताएं. किस तरह की टैक्सेशन लगाएंगे कि इनकम गैप्स कम हो जाए. कम ऑन गाइस, बहुत दफा किया हुआ है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. राहिमीन थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो, व्हाट आर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. Tax rate rises as income level rise. MRT, marginal rate of tax is greater than ART, that's rate of tax. Good. इससे क्या होगा? We will take a bigger proportion of whose income and smaller proportion of poor's income. As a result, income gaps should reduce, but this creates disincentive to work, evasion of taxation. ठीक है. और अगर गवर्नमेंट सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाई तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर नहीं होगी. यहां पे आपका सारा आंसर हो गया है. कंक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं है, उसने नहीं कहा विच वन इज बेटर. एहतियातन कर देते हैं. Progressive taxation is not desirable because of its disincentive and all. Supply side policies bring long run improvement in the economy. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? Let's look what the mark scheme has to offer. अरे, correct example, development linked to equality. Correct example, development linked to equality. माजिन, जो आपने कमेंट किया था मैं उस पर सोच रहा हूँ. Reducing welfare payments is not a redistributive policy. वो गलत हो जाएगा. We have to increase transfer payments to reduce income gaps. लेकिन उससे disincentive to work, poverty trap. Everyone 100% clear? मेरे ख्याल में इट वाज अ रिलेटिवली इजी 14 मार्क्स एंड क्वाइट टफ 6 मार्क्स. जिनकी रिवीजन थी 12 से 14 आराम से स्कोर कर जाएंगे. जिनकी बहुत अच्छी रिवीजन एंड प्रैक्टिस थी वो 15 एंड अबव स्कोर करेंगे. CIs आर वेरी स्ट्रिक्ट इन मार्किंग, सो इसलिए 36 पे ए आ रहा है. P4 में समहाउ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, लेबर मार्केट, रिपीट क्वेश्चंस, बच्चे स्कोर कर जाते हैं. नाउ लेट्स लुक एट सेक्शन बी. अब मेरे बच्चों, विच क्वेश्चन वुड यू चूज एंड बी वाइज इन चूजिंग. इसमें मैं अपने नॉर्मल ट्रेंड से हटूंगा. बार आप लोग मुझे बताएं कौन सा चूज करोगे. 3. I love this question choice because 3 इंडिफरेंस डायग्राम्स बड़ा मैथमेटिकल सा है. बड़े आसानी से आप स्कोर कर जाएंगे. With the help of an indifference curve diagram, assess the extent to which a rise in price would affect the demand for a normal good differently from the demand for a given good. लेकिन इसके साथ जस्टिस करनी पड़ेगी हमें. बहुत अच्छे आंसर देने पड़ेंगे. अच्छा, आई वाज जस्ट लुकिंग कि और बच्चे आए कि नहीं. लेट मी जस्ट कॉपी इट. नहीं मेरा बेटा, बहुत आसान है, वो भी बहुत आसान है. अगर आप एक बार नोट्स रिवाइज करो, थोड़ा सा एक्सटर्नैलिटीज वगैरह इसमें वो भी कर सकते हैं मेरे बेटा. वो क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन इन परफेक्ट कंपटीशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इलस्ट्रेट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन इन अ फ्री मार्केट. हम यही तो पेश कर रहे होते हैं, डिमांड सप्लाई मॉडल. और फिर लॉन्ग रन में जब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट बना रही है, दोनों एफिशिएंसीज हैं, प्रोडक्टिव भी, एलोकेटिव भी. अब वो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो, क्योंकि एक ये थ्योरेटिकल मॉडल है, रियलिटी नहीं है, तो इसमें ऐसा हो सकता है. एंड कंसिडर व्हाट प्रिवेंट्स एफिशिएंसी, मार्केट फेलियर्स, और फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन. है मेन वही है, बस थोड़ा सा खास मार्केट फेलियर से हटके उसने जनरलाइज्ड क्वेश्चन भेजा है इन द लाइन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. समझ आ गई बात? इकोनॉमिक्स हर चीज में. हाँ, इसमें प्रोडक्टिव भी आएगी, इसमें एलोकेटिव भी आएगी, डायनामिक की बात भी करेंगे, परेटो की भी करेंगे. ये जरा ब्रॉड स्कोप क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था कि आई काइंड ऑफ chew on my words and go for this question, which is a 20 out of 20 with slight attention paid. अब मैं आप लोगों को आज की क्लास में ये सॉल्व कराता हूं, और शायद दूसरा भी हो जाए if we are able to do it well.
मैं ज़रा स्पीड में करूँगा लेकिन लिखूँगा सारा, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा है। नहीं बेटे, उसने गिफिन बोला है तो बस गिफिन एंड नॉर्मल। देयर इज नो नीड फॉर इंफीरियर, दैट विल काइंड ऑफ गो आउट ऑफ द स्कोप। हमें टाइम मैनेज भी करना है ना अब्दुलरहमान, सो व्हाई स्पेंड टाइम ऑन नीडलेस क्वेश्चन। अगर इंफीरियर बोला होता तो उसमें गिफिन करा सकते हैं आप, क्योंकि इंफीरियर ही है ना गिफिन भी। अब मेरे बच्चों, सेम ओल्ड, सबसे पहले अप्रोच बताएं, ऑर्डिनल है जी। फिर उसके बाद अजम्पशंस बताएं इस अप्रोच की। उसके बाद लेट्स जस्ट फर्स्ट डू इट। अजम्पशंस क्या हैं जी? बोले मेरे बच्चों। उसके बाद में आएंगे बेटे, बाद में आएंगे। नो नो नो, दैट इज फॉर कार्डिनल मेरा बेटा। Assumptions of ordinal approach are: consumer is capable of making comparisons of two goods and find various bundles, substitute them to find his indifference points। जाके वो दो गुड्स के कई पैकेट्स बना सकता है अपने माइंड में, और फिर उन सब से उसको सेम यूटिलिटी मिल रही है। सेकेंडली, देर इज ट्रांजिट। सॉरी। हाँ हाँ, वो दोनों का है, रैशनल कंज्यूमर, इनडिफरेंस। फिर उसके बाद ट्रांजिटिविटी। अब मैं एक बार जिन बच्चों की रिवीजन अच्छी नहीं है उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास के लिए बोल देता हूं। कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ मेकिंग कंपैरिजंस ऑफ वेरियस बंडल्स ऑफ टू गुड्स। बच्चे लिख देते हैं बिटवीन टू गुड्स, नहीं, वेरियस बंडल्स ऑफ टू गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट देम टू फाइंड हिज इनडिफरेंस। ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकता है जिन सब से उसको सेम टोटल यूटिलिटी मिल रही है। बच्चे मार्जिनल लिख देते हैं टोटल, या सेम सेटिस्फैक्शन लिख दो, सेफ रखो। ट्रांजिटिविटी: इफ ही प्रेफर्स गुड ए ओवर गुड बी एंड गुड बी ओवर गुड सी, ही विल ऑल्सो प्रेफर गुड ए ओवर गुड सी। उसकी चॉइसेस प्रेफरेंशियल हैं, ट्रांजिएंट हैं। लास्टली जी रैशनल है, इस पे तो दो तीन लाइनें लिखो। परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, परफेक्ट रिसर्च है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह, फैशन कल्चर किसी चीज़ से इंप्रेस नहीं होता, लोगों की बातों से इंप्रेस नहीं होता, मैक्सिमाइज करता है यूटिलिटी, ऑलवेज प्रेफर्स मोर ओवर लेस। अब मेरे बच्चों, डिफाइन indifference curves, give at least two properties of indifference curves। बता दें मुझे जी, क्या होता है indifference curve? कंज्यूमर्स बिहेवियर। हाँ जी बोले, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व बेटे? अ कर्व दैट शोज, बिल्कुल, इट शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which give the consumer same level of utility, hence is indifferent। और अच्छा करना चाहो, its slope is mu of good y divided by mu of good x। इसकी दो प्रॉपर्टीज क्या हैं जी? जितना ये ओरिजिन से दूर होता है, बोले बोले, यूटिलिटी एंड लेवल ऑफ प्रेफरेंस है। इसके अलावा ये थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग है। क्यों? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility। When he buys more of good X, its mu falls and is willing to give up less and less of Y for every additional X। Decreasing opportunity cost है basically। मैं वैसे बाकी दो बताता हूँ। It slopes downwards because of a degree of substitution between goods। Lastly जी, it never intersects each other because consumer can never be indifferent on two different curves। वो हमेशा हायर वाले पे जाएगा। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज कम से कम कर दें। फिर बजट लाइन को डिफाइन भी करें, ड्रॉ भी कर दें, शिफ्ट्स भी दिखा दें। व्हाट इज बजट लाइन बच्चों? Yes, perfect. With a budget line is a line that shows
all possible combinations of two goods. यहाँ तक PPC वाली definition है, which a consumer can buy in his given fixed income and given prices. Its slope is हाँ, yes, price of y divided by price of x. Perfect. अब मेरे बच्चों दिखा देना कि बाहर शिफ्ट होती है, अंदर शिफ्ट होती है, अगर इनकम चेंज हो, मनी इनकम, या दोनों गुड्स की प्राइस, पैरेलल शिफ्ट। और पिवटल होती है जब एक गुड की प्राइस चेंज हो। ड्रॉ कर दें बेशक। अब बेसिक इक्विलिब्रियम दिखाएंगे आप, जहां पे बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के, और यहां पे बच्चे ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं कि सीरियसली सर पीटने को दिल करता है। मुझे जरा लेबल्स बताएं मेरे बच्चों, व्हाट आर द लेबल्स? थैंक यू। बच्चे लिख देते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी या पीआरसी। सारा गलत हो गया। यू विल नॉट इवन स्कोर मोर देन 6 मार्क्स। और बच्चे आएंगे, सर मैंने पूरा डायग्राम बनाया था, पेपर रीचेक करवाऊं? मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, आपने लेबल क्या किया था? और वहीं पे वो बारे में से इन्फ्लेशन निकल जाती है। दिस इज अ टोटली डिफरेंट डायग्राम टू डिमांड सप्लाई डायग्राम। सिंपल स्ट्रेट बजट लाइन लगाएं और साथ में एक बैकवर्ड बेंडिंग इंडिफरेंस कर्व लगा दें। इक्विलिब्रियम y0 x0। ठीक है जी, और बताएं यहां पे उसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है थ्रू टेंजेंसी ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। अब मेरे बच्चों, हमारा मेन कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमने नॉलेज तो आराम से पूरी कर ली थी। अब हम चलते हैं, प्राइस इफेक्ट बताएंगे, बल्कि पहले नॉर्मल एंड गिफिन को एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे बताएगा को बच्चा, व्हाट आर नॉर्मल गुड्स? सबसे आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल यही था आज की क्लास का, पूछें, बताएं। हेलो, आर यू गाइस देयर? वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज नॉर्मल गुड्स डेफिनेशन मेरा बेटा? नॉर्मल गुड्स आर, कम ऑन गाइस, ये क्या हो गया? एएस का क्वेश्चन है ये तो। Normal goods have a positive relationship with consumers' income. When incomes rise, their demand rise. Normal उसको income की वजह से कह रहे हैं, positive YD की वजह से। They include necessities and superior goods. ठीक है? Necessities will have inelastic demand, superior goods will have elastic demand. ये आपकी evaluation है जो हम बाद में भी करेंगे। Giffen goods बताएं मुझे जी। नहीं, वो तो है। हाँ, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है, दे आर, लेकिन इंफीरियर गुड डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे आप। गिफिन गुड्स, unique type of inferior goods which have such a large negative relationship with income that the price effect becomes positive and demand curve slopes upward. बच्चों दोबारा बता दूं एक बार, this was very surprising कि I was thinking you'll get these very easily. Normal goods have a positive relationship with consumers' income. Incomes rise, their demand rises. They include necessities and superior or luxury goods. Necessities have an inelastic price elasticity of demand, whereas income elasticity of demand, and luxuries have a elastic demand. PED भी इनकी ऐसे ही है. Giffen goods are unique type of extremely inferior goods like potato in Ireland, basic staple foods. They have a negative relationship with income, and such negative relationship that the price change causes positive change in demand. Rise in price, demand rises, demand curve slopes upward. दोबारा बता दूं या प्लीज क्लियर हो सब? बेटे नॉर्मल गुड इकोनॉमिक्स में किसको बोलते हैं? इनकम बढ़े उनकी डिमांड आप ही बताएं, इंक्रीज होती है। इसमें कौन कौन सी शामिल होती हैं? नेसेसिटीज एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज की इनकम इनइलास्टिक डिमांड,
लग्जरीज की इनकम इलास्टिक। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर जी गिफिन गुड्स क्या होती है? जिनका inferior goods, yes, they have a very big negative income effect, negative relationship with income. Hence, their price effect becomes positive. अब हमने डिफाइन करना है जी प्राइस इफेक्ट को, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, इनकम इफेक्ट को। बच्चे आई ई लिख देते हैं, लाइक माई स्टूडेंट रोट इन द नोट्स, इट्स बाई ई। प्राइस इफेक्ट क्या होता है जी, जल्दी से बताओ। यू गाइस आर रस्टी ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। बताएं व्हाट इज प्राइस इफेक्ट। हाँ, change in consumption due to change in price of the good itself. It includes two further effects. Substitution क्या होता है? Consumer always prefers, come on, relatively cheaper. Price wise नहीं, always prefers, कितना छोड़ रहा है वो दूसरी, relatively cheaper good over the relatively expensive good. ठीक है। उसके बाद जी इनकम इफेक्ट क्या है? शाबाश। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम कॉज्ड बाय प्राइस चेंज। इनकम चेंज नहीं हुई थी, मनी इनकम चेंज नहीं हुई थी, प्राइस चेंज हुई थी। गॉट इट जी। ये डिफाइन करें, फिर नॉर्मल के बताएं। नॉर्मल गुड्स, क्योंकि उसने हमें नहीं कहा कि क्या प्राइस, उसने बताइए शायद राइज इन प्राइस है शायद क्वेश्चन में। लेट मी जस्ट गो टू द क्वेश्चन। या राइज इन प्राइस। तो अब मुझे इफेक्ट्स बताएं। व्हेन प्राइस राइजेस, सारे इफेक्ट क्या होते हैं? ऑल इफेक्ट्स आर नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर बेटे ठीक करो, गड़बड़ लग रही है। नॉर्मल गुड्स, व्हेन प्राइस राइजेस ऑल इफेक्ट्स आर नेगेटिव, हेंस, बस ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव मेकिंग द होल प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। और गिफिन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, रिलेटिवली महंगी होगी, सबका सेम है। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। मैं जिस तरह करने लगा हूं अब आगे उस तरह नहीं करना। अलबत्ता इनकम इफेक्ट is greater than substitution effect, so price effect becomes positive. डिमांड कर्व इसका ऊपर की तरफ स्लोप होता है, प्राइस बड़े ज्यादा खरीदते हैं, प्राइस कम हो कम खरीदते हैं, उल्टा है बाकियों सबसे। समझ आ गया मेरा बेटा? एक बार ये डेफिनेशंस प्लीज मेमोराइज कर लें ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। एक बार देख लें, आई एम गिविंग यू अ फ्यू सेकंड्स टू जस्ट गो थ्रू देम। अब रिसेंटली मैंने एक क्लास में ये मॉक में दिया था, बच्चों ने बहुत गलत डायग्राम्स बनाए थे। सॉरी, A1 का टेस्ट था, बच्चों ने बहुत गलत डायग्राम बनाए थे, तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। तसल्ली से हमेशा पेज के ऊपर बनाना या मिडल में, ताकि नीचे आपके पास डिमांड कर्व निकालने की जगह हो। और लेबल फॉर वेरी वेरी सेफ होके गुड एक्स गुड वाई, एक्स को हमेशा एक्स एक्सेस पे लिखना, खाली वाई एक्स को वो एक्सेस समझेगा, गुड लिखना है साथ। तो आपने क्योंकि प्राइस गिरानी है, इसलिए पहली बजट लाइन को यूं बाहर की तरफ लेटा हुआ सा लगाएं। अब बहुत ही लेटा हुआ सा इंडिफरेंस कर्व, थोड़ी सी उसको टेंजेंसी देनी है। इतना खरीद रहा था कंज्यूमर बिफोर एनी राइज इन प्राइस, इक्विलिब्रियम 0 एक्स 0। अब प्राइस बढ़ने से गुड एक्स की बजट लाइन विल शिफ्ट पिवटल इनवर्ड टू AC। अब मैं डिफरेंट कलर ले रहा हूं।
अब हमें शैडो बजट लाइन बनानी है, क्योंकि रियल इनकम गिर गई है तो हम उसको बाहर की तरफ इमेजिनरी शिफ्ट कर रहे हैं। हल्की सी टेंजेंसी दो, क्रॉस नहीं करो, डी एफ इसको नाम दे दो। ए बी सी डी में चला रहा हूं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन बेटर टू डू इट लाइक दिस। अब देखो बड़ा खुला खुला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारे पास आ गया। अब तमाम गुड्स का सेम है। अब मुझे बताएं, 1 2 3, नॉर्मल का मैं 1 पे लगाऊंगा नई बजट लाइन पे, 2 पे या 3 पे? नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव दिखा चुके हो, सब गुड्स का सेम है। तो मुझे बताओ नॉर्मल का मैं कहां लगाऊंगा? ओके, कंज्यूमर बिहेवियर नीड्स रिविजन। किसी को नहीं पता लग रहा? कोशिश तो करें। ये नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो चुका है, और किस तरफ जाऊं कि मेरा नेगेटिव इनकम इफेक्ट भी आए? सॉरी, नो माजिन, ये देखो इंडिफरेंस कर्व मैंने नॉर्मल साथ लिख दिया, इक्विलिब्रियम नॉर्मल। बेटे नेगेटिव कैसे होगा? एक्स एन फर्दर मैं कम ले रहा हूं, जीरो के पास जा रहा हूं। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये मेरा इनकम इफेक्ट फॉर नॉर्मल गुड्स, ये मिल मिला के प्राइस इफेक्ट। बच्चों कंज्यूमर बिहेवियर तो काफी कच्चा निकला है, मैंने आपको सिर्फ 4 यूनिट करने को कहा है। प्लीज जरा थोड़ा ठीक करें। बिल्कुल नीचे डिमांड कर्व निकालें। अब ये मुझे निकलवाइएगा, इसमें प्राइस क्वांटिटी लेबल करनी है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम हमेशा पकड़ना है, सब्स्टिट्यूशन वाला इमेजिनरी है। तो कहां से मैं स्टार्ट करूं एक्सट्रापोलेशन? एक्स जीरो, एक्स एस या एक्स एन, कहां से? एक्स जीरो, और नीचे तक ले आओ क्योंकि प्राइस उस वक्त कम थी। फिर एक्स एन पे आए जब प्राइस बढ़ चुकी है नॉर्मल गुड की, बी पॉइंट, डिमांड कर्व नॉर्मल गुड्स का नॉर्मल सा या थोड़ा सा इलास्टिक बनता है। क्लियर ऑन दिस मेरे बच्चों? अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ब्रीफली। इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट E0 where budget line AB was tangent to indifference curve IC0. Consumer was purchasing X0 amount of good X. As a result of rise in price of good X, budget line shifts pivotal inward, जिस तरह बोलना है, to AC. To separate income and substitution effect, we draw an imaginary shadow budget line to nullify the effect of change in real income. DF is tangent to original indifference curve at ES, equilibrium substitution. X0 to XS is negative substitution effect, and XS to XN is negative income effect for normal goods. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब हम आगे चलते हैं जी। अब देखो, मैंने देखा कि मेरे पास स्पेस नहीं है इस पेज पे, तो आई डिसाइडेड टू गो टू द नेक्स्ट पेज। प्लीज डू नॉट एक्सट्रापोलेट डिमांड कर्व ऑन द नेक्स्ट पेज, सीआई वाला मार्क शायद नहीं देगा। खुला खूबसूरत सा साफ साफ डायग्राम, गुड वाई, गुड एक्स। अगेन क्योंकि हमने प्राइस गिरानी है तो पहली बजट लाइन को मैंने काफी वाइड लगा दिया, और उसके साथ बहुत ही फ्लैट सा इंडिफरेंस कर्व लगा दिया, टेंजेंसी आसानी हो इसलिए। X0 हम खरीद रहे थे। अब बजट लाइन पिवटल इनवर्ड शिफ्ट होगी बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ गुड X। अब मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, पहले ही 3 पॉइंट लगा दो, इधर एक बड़ा सा ना नुक्ता बना दो अपने लिए, आसानी करो ताकि आपको क्रॉस करना आसान हो। टेंजेंसी देनी है, क्रॉस नहीं करना इंडिफरेंस कर्व को। ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, यहां मिला दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, यहां लगा दिया। थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं, दैट्स इट। अब देखो, इट्स अ वेरी अगली डायग्राम बट ही विल गिव यू फुल मार्क्स बिकॉज इट्स करेक्ट। जहां पे ये टेंजेंसी हो रही है, ई एस, X0 XS। अब मुझे दोबारा बताएं, 1 2 3, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव आ चुका है।
कहां लगाऊं इंडिफरेंस कर्व नया कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो और सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ प्राइस इफेक्ट को पॉजिटिव बना दे। शाबाश। 3 पे आई सी जी मैंने लिख दिया गिफिन के लिए, इक्विलिब्रियम जी एक्स जी। यहां तक हम आ चुके थे ऑल द वे। इनकम इफेक्ट हमारा गिफिन गुड्स का पॉजिटिव आया, और सिर्फ ये जो 3 जहां पे मैंने लिखा हुआ है इसको मैं इरेज करता हूं। मैं दिखाता हूं जी, अभी इसको इरेज कर दूं मैं 3 को। प्राइस इफेक्ट आपका x0 से xg तक है। ये आपका प्राइस इफेक्ट है गिफिन गुड्स का। समझ आ गया मेरा बेटा? अब मेरे बेटे इसका डायग्राम बच्चे गलती कर जाते हैं। E0 को पकड़ना है पहले, ES तो इमेजिनरी है। एक सेकेंड में इसको एडजस्ट कर लूं। E0 को पकड़ा, जब प्राइस थोड़ी थी मैं नीचे तक ले आया, प्राइस क्वांटिटी। और दूसरा EG को पकड़ोगे, प्राइस ऊपर रोक दोगे, डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड्स विल स्लोप अपवर्ड्स। अब मेरे बच्चों ये आपका एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है जब इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे। मेरे बेटे कुछ मसला है तो बता दें। जस्ट फॉर योर सेक मैं इंफीरियर का बीच में लगा रहा हूं, जस्ट इन केस किसी क्वेश्चन में इंफीरियर आए। ICI इक्विलिब्रियम आई। अब देखो एक्स आई, इतना सारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट आया है लेकिन सब्स्टिट्यूशन बड़ा है, इसलिए प्राइस इफेक्ट इज स्टिल नेगेटिव। क्लियर ऑन दैट मेरे बच्चों? ओके। मुझे लग रहा है सिर्फ राहिमीन को आ रही है क्लास समझ। बहरहाल ये हो गया। अब हम जब इवैल्यूएशन पे जाएंगे तो पहली बात जी, व्हाट इज हैपनिंग टू प्राइस राइज से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स क्या हो रही है, मुझे बताइए। फॉल हो रही है। और गिफिन गुड क्या हो रही है? राइज हो रही है। कितना फॉल या राइज होगी विल डिपेंड ऑन पीडी फॉर बोथ गुड्स, will depend on substitution, and income effect for both goods will also depend on slope of indifference curves and budget line. समझ आ गई मेरा बेटा? ये आपकी वैल्यूएशन है। कंक्लूजन में हम लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी दे देंगे थोड़े से, कि रैशनल कंज्यूमर नहीं होता। 2 गुड्स का मॉडल है, रियलिटी में बहुत सारी गुड्स हैं। कई गुड्स जो हैं कुछ कंज्यूमर की नज़र में इंफीरियर होती हैं, दूसरों की नज़र में गिफिन होती हैं, तो बड़ा मुश्किल है इंफीरियर और गिफिन में फाइंड करना डिफरेंस। और जो हमारा रैशनल कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है इनकम, फैशन, टेस्ट वगैरह चेंज होने का, उस पर इफेक्ट नहीं आता, रियलिटी में आता है। मुझे बताएं बेटे, आप लोगों को प्राइस फॉल के डायग्राम भी करवा दूं सिंस वी आर ऑन दिस? बताइए मुझे। नॉर्मल गुड्स जी, पहले मुझे थ्योरी आप लोगों की पक्की करवानी है। प्राइस गुड एक्स की फॉल हुई है जो नॉर्मल है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? रिलेटिवली सस्ती हुई है, पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट, प्राइस गिरी, रियल इनकम बढ़ी। नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनकम इफेक्ट विल ऑल्सो बी, मिल मिला के प्राइस इफेक्ट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। जबकि प्राइस ऑफ एक्स गिरी है और ये गिफिन है, मुझे बताएं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, सबका सेम है। इनकम इफेक्ट अलबत्ता विल बी, और इतना नेगेटिव होगा कि वो सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करेगा, प्राइस इफेक्ट को पॉजिटिव। समझ आ गया? अब मैं जल्दी से यहाँ पे तीनों गुड्स इकट्ठी बना रहा हूँ, हमारी क्लास मीटिंग का भी टाइम ओवर हो रहा है। अब ये थोड़ी थोड़ी स्मार्टनेसेस आपने खुद करनी है, गुड वाई गुड एक्स, क्योंकि इस केस में मैंने बजट लाइन को बाहर शिफ्ट करना है, तो पहली वाली को मैंने जरा इधर लगाया है। अब अगेन इन डिफरेंस कर्व को बहुत फ्लैट, स्पेशली निचले वाले पार्ट में जहां पे हमने टेंजेंसी देनी है, इक्विलिब्रियम x0,
अब बजट लाइन को बाहर शिफ्ट करें। देखो मैंने एक्सेस को बढ़ा दिया है, कोई मसला नहीं है, इसको टेढ़ा ना करना। अब हमारी रियल इनकम गिर गई, उसको वापस लाना है। इस केस में रियल इनकम को हमने वापस नीचे लाना है। तो पहला पॉइंट नीचे, दूसरा ब्लॉक, ताकि हम टेंजेंसी दिखा सकें, और डी एफ इसको नाम दिया। अब मेरे बच्चों जहां ये इकट्ठा हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब गुड्स का सेम पॉजिटिव, यही मुश्किल काम है, उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। अब मुझे बता दें, मैं नंबर्स लिख रहा हूं नई बजट लाइन पे, 1 2 3। नॉर्मल कहां लगेगा? 3। आई सी एन एक्स एन, ये हमारा इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का, और मिल मिला के प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का। नंबर 2 पे कौन सी गुड का लगेगा? इंफीरियर, आई सी आई, इक्विलिब्रियम आई। अब जरा इसके इफेक्ट्स देख लो, एक्स आई, ये नेगेटिव वाला इनकम इफेक्ट है फॉर इंफीरियर गुड्स, और इतना सारा पॉजिटिव इनकम प्राइस इफेक्ट है फॉर इंफीरियर गुड्स। और 1 पे ऑफ कोर्स अब लगेगा गिफिन का, आई सी जी, इक्विलिब्रियम जी। ये देखो सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव था, ऑल द वे हम आए हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट, एक्स जी। अच्छा जी, ये हमारा आ गया इनकम इफेक्ट गिफिन गुड्स का, और इतना सारा नेगेटिव प्राइस इफेक्ट गिफिन गुड्स का। मेरे बच्चों आज रात जरा कंज्यूमर बिहेवियर पे लगा दो, थोड़ा सा वीक है, ठीक है? एनी क्वेश्चन जी? Alrighty, I'm closing the recording now.